Jai Hind everyone. This is the first video of 12th standard mathematics. Students, in this video we are not going to study question paper format. We are not going to study or discuss the weightage of chapters. We are going to study first chapter of mathematics part 1, mathematical logic. Why so? Because I will prepare one simple PDF file for question paper format and for weightage. So for that I'm not going to waste, I'm not going to use your screen time. Okay, so let's start this chapter, mathematical logic. The first topic of mathematical logic is statement. Remember, this statement is very important word in the judicial system. When somebody is stated, so they will record their statement, what he has said, and they will verify whether what he said, whether it is true or false. So when he is saying, he is declaring something, so that declaration is very important. Yes, so declaration, it means statement. So a statement is a declarative sentences. When a sentences is one kind of declaration. अब देखिए sentences it means अगर कोई आप वाक्य बोल रहे हो, यस कोई सेंटेंस बोल रहे हो और वो सेंटेंस में आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, यस कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को स्टेटमेंट कहा जाता है. अब ये क्या है सर, ये तो हमारे दिमाग के ऊपर से जा रहा है. सो क्या होता है देखते हैं. These are the examples. Let us see. Now, sun rises in the east. एक statement है. Yes, it is a statement. Why? Because I am declaring something that sun rises in the east. Now it is depend upon you whether it may be false at your knowledge or it may be true at your knowledge, because I already said that statement has only one value, whether it is true, whether it is false, so that you have to verify. So remember, statement as truth value, that if a statement is true, whatever I said, if it is true, then it has truth value T, and if whatever I said it is wrong, it is false, so its truth value is F. Remember, yes. So students, can you tell me this declaration, I declared that sun rises in the east. Now you tell me, sun rises in the east. Yes, it is rises in the east. So my statement is true. So its truth value is T. Yes, obviously. Now let's see second statement. Now you will say, sir, this is not a sentence. How you can say this is a statement? Yes, this is the mathematical statement. Yes, because this is equation and this is mathematical statement. What they stated, 5 into 2 is equals to 11. Now you will say me, sir 5 2 जा 10 होता है, आपने 11 लिख दिया. मेरी मर्जी, मैंने तो डिक्लेयर करना है कि 5 2 जा 11. Now it is depend upon you whether it is true or false. Now you tell me, it is one kind of declaration. I declare that 5 2 जा 11 होता है. Now you will check whether it is true or false. Yes, it's a false. Obviously it's a false. So we will write here its truth value is, इसकी truth value क्या है, F है. इसकी truth value क्या है, T है. Now next, now I am going to declare. It is a statement. Remember, every triangle has 3 sides. Every triangle has 3 sides. Now you tell me, triangle, 3 angles. If it is contain 3 angle, you tell me what about triangle. Triangle has always 3 sides. Any kind of triangle, whether it is equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle, or types acute angle triangle है, right angle triangle है, obtuse angle triangle है. All triangles, all kind of triangle has 3 sides. You tell me whether it is true or false. Yes, this statement is true. Now next statement, Mumbai is the capital of Maharashtra. Whether it is true? Yes, Mumbai is the capital of Maharashtra, not a Gujarat. So it is true. Every rhombus is parallelogram. Now you will say me, sir, before this you said, or
as you said that this chapter not required any basic, because you know that when I started teaching this I didn't conduct any basic thing. It means this chapter don't require any basic thing from the 11th, from the 10th, or from the previous classes, because this is the new chapter, fresh chapter, which will help you to study computer science, electronics, telecommunication. Yes. So remember, when you are going to study this chapter, those are going for computer science, concentrate here. Those are going for electronics, concentrate here. Those are going for AENTC, electronics and telecommunication, concentrate here for engineers. Okay. So I said that every rhombus is parallelogram. Now sir, this required basic. Yes, obviously this basic is required. So rhombus look like this. All sides are congruent. This is called as rhombus. So rhombus is parallelogram. So every rhombus is parallelogram, so it's a true. Now next, a natural number is an integer. Natural number क्या होता है? Yes, जो नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज होते हैं. जैसे अगर मैंने कुछ चीज आपके सामने रखी, so you start counting from 0, 0, 1, 2, नहीं, you will start counting from 1. सो जो नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, जो नेचुरली हमारे मुंह से काउंटिंग स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? 1 से स्टार्ट होती है. कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है. सो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity. नाउ इफ आई विल राइट नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, they are integers, because integers are all positive, all negative numbers and 0. Collection of all positive, all negative and 0, it is called as integer. Now you tell me whether they are integers. Yes, so every natural number is integer. So this is also true and this is the statement. ये स्टेटमेंट था क्योंकि इससे ये कुछ नॉलेज दे रहा है. वेदर दैट नॉलेज ट्रू और फॉल्स, दैट वी विल चेक. नाउ नेक्स्ट, let's discuss about these sentences, whether these sentences are statement or not. Let's discuss, because this is very important. In the examination you may have this kind of question, whether given sentence is statement or not. Now let's see, we are talking about assertive sentences, declarative sentences. जो सेंटेंस में डिक्लेरेशन होगा, assertive सेंटेंस होंगे, उन्हें ही स्टेटमेंट कहा जाएगा. बाकी सेंटेंसेस को स्टेटमेंट नहीं कहा जाता है. नाउ लेट्स सी वेदर दीज सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट और नॉट. फर्स्ट, प्लीज गिव मी योर पेन. व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम दिस? क्या डिक्लेरेशन किया मैंने? कुछ भी नहीं, मैंने रिक्वेस्ट की है. सो रिक्वेस्ट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट नहीं है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू के बारे में क्या डिस्कस करेंगे हम? इसकी क्या ट्रूथ वैल्यू आएगी? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट नहीं है. अगर कोई कोर्ट में खड़ा है, मुझे एक ग्लास पानी दो, ये क्या उसका स्टेटमेंट है? प्लीज गिव मी अ पेन, ये क्या उसका स्टेटमेंट है? तुम मुझे क्या पूछ रहे हो, ये क्या उसका स्टेटमेंट है? बिकॉज ही इज आस्किंग क्वेश्चंस. सो ही इज रिक्वेस्टिंग हियर, please give me your pen. So request, when there is a request sentence, so that is not a statement. वो statement नहीं है. What is your name? He is asking questions. ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है. क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. So when the sentence is interrogative, अब आप बोलोगे इंटरोगेटिव सर, ये इंटरोगेटिव क्या है भाई? क्वेश्चन. What is beautiful? What a beautiful place is it? What a beautiful place is it? क्या इन्फॉर्मेशन मिली? ब्यूटीफुल प्लेस? कुछ नहीं भाई, उसने तो सिर्फ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज किया है. और जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं तो वो भी स्टेटमेंट नहीं होते. मैं यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, दे आर नॉट स्टेटमेंट्स. नाउ नेक्स्ट, ओपन द विंडो. इट इज वन काइंड ऑफ कमांड. When you are giving a command, open a window, open the window, that is not a statement because it don't have any value. इसको कोई truth value है क्या? open a window, क्या करोगे आप लोग? Not a information. Let us go for T. Suggestion. अगर कोई suggestion है, let us go for T, that is also not a statement. Suggestion. Now next, sit down. Order. It is not a statement. So when these kind of sentences will be there, so they all are not statements. Statement किसको कहोगे? जिसमें क्वेश्चन नहीं है, जिसमें रिक्वेस्ट नहीं है, जिसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं है, जिसमें कमांड नहीं है, जिसमें सजेशन नहीं है,
उसको ही स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसमें क्वेश्चन आ गया, रिक्वेस्ट आ गई, कमांड आ गया, सजेशन आ गया, या फिर कोई एक्सक्लेमेटरी आ गया, ऑर्डर आ गया. सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर नॉट अ स्टेटमेंट. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट नाउ? यस, बेसिक. और एक बार 1 मिनट में रिवाइज करते हैं. स्टेटमेंट एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, और इन सेंटेंसेस की कुछ ट्रूथ वैल्यूज होती है. इसमें वेदर दैट स्टेटमेंट विल बी ट्रू और फॉल्स. अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? कैपिटल टी. उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी अगर वो फॉल्स है? एफ. अब आप बोलोगे सर व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, कितना कचरा पढ़ा दिया सर आपने तो, मेरे तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है. अब मैं बताता हूँ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस. अब समझेगा, कुछ जादू होने वाला है. लेट्स सी. लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. स्टूडेंट्स, when we develop a computer, अब आप सर कंप्यूटर में कैसे घुस गए भाई, ये इसका ही कंसेप्ट है. when we develop a computer, when we starting developing computers, we use semiconductor. हमने क्या यूज किया? सेमीकंडक्टर. कुछ बल्ब यूज किए, लाइट यूज किया, छोटा सा लाइट होता है एलईडी. यस, एलईडी सबको पता है, ऐसे होते हैं वो. ये जो एलईडी होता है इसके सिर्फ 2 वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकता है. ओनली 2 वैल्यूज इट कैन रिप्रेजेंट. अगर ये ऑन हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑन. अगर ये ऑफ हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑफ. बस सिर्फ 2 वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा. इट मीन्स इट हैज ओनली 2 आउटपुट. वन इज ऑन, सेकेंड वन इज ऑफ. तो ऑन को हमने कंसिडर कर लिया 1 और ऑफ को कंसिडर कर लिया 0. तो जैसे कंप्यूटर बना तो हम बोलते हैं कि कंप्यूटर वर्क करता है 0-1 पे, दैट इज बाइनरी कोडिंग सिस्टम. तो पहले के जमाने के जो कंप्यूटर थे उन्होंने हर एक नंबर को, हर एक सिंबल को एक पर्टिकुलर बाइनरी कोड दे के रखा था. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैपिटल ए बोलता हूँ तो मेरा बाइनरी कोड होगा कैपिटल ए के लिए कुछ भी मैं कंसिडर करूंगा 10001. अब अगर मुझे इसको कंप्यूटर पे शो करना है सो आई विल हैव सम एलईडीज. कितने एलईडी होंगे मेरे? अगर 4 है तो इसको बोलते थे निबल. अगर 8 होते हैं तो इसको बोलते हैं बाइट. कितना बाइट है? 1 बाइट. यस, आर यू गेटिंग? तो 8 लाइट अगर लगा दिए तो 1 बाइट होता है. यू हैव 64 बाइट सिस्टम्स एट योर होम. नाउ यू रिमेंबर, अगर वहां पे लाइट होते तो आप लोग क्या करते? तो वो जमाना गया एलईडी का. अभी आप लोग क्या करते हो? सिंपल सेमीकंडक्टर्स यूज करते हो. इनसाइड जो चिप होती है उसमें इतनी सी चिप में सारा स्टोरेज है भाई. सो उसमें सारी ये वैल्यूज होती है. अगर आप कंप्यूटर पे ए प्रेस करते हो तो कंप्यूटर 64 नंबर लिखता है 101010 के फॉर्मेट में. सो रिमेंबर लॉजिक. ये जो डेवलप हुआ है ये वर्ड लोगो से डेवलप हुआ है. अब मैं बेसिक में जा रहा हूँ थोड़ा सा. लोगो से डेवलप हुआ है. लोगो वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड है. अब ये किसने किया? तो एक बुलिन, जॉर्ज बुल करके एक थे. यस, मैं अगर स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं तो आप करेक्ट कर सकते हो. जॉर्ज बुल. तो इन्होंने एक नया मैथमेटिकल कंसेप्ट ओपन किया, एक नई मैथमेटिकल ब्रांच ओपन की, दैट इज कॉल्ड एज बुलिन अलजेब्रा. आप अगर बीएससी मैथ करते हो तो आपको समझेगा बुलिन अलजेब्रा क्या है, या फिर आप कंप्यूटर साइंस को जाते हो तो भी आपको ये आएगा बुलिन अलजेब्रा. बुलिन अलजेब्रा टोटली डिपेंड अबाउट सर्किट्स. सारे सर्किट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. So that is why we are learning this. Why we are talking about value. On है तो ये true हो गया, off है तो ये f हो गया. Yes, so only 2 values. Okay, so इसका और इसका कनेक्शन होने लगा आगे जाके, तो इसको ठीक से पढ़ लीजिए. इसलिए इतना कचरा मैंने पढ़ा है. सर क्या बोर कर दिया आप लोगों ने? So it is not a bore concept. It is very important concept. Statement is a assertive sentence in which we are going to declare something, and we are declaring something, so it may be false or it may be true. So it has only 2 values. So I discuss about the sentences. I discuss about the sentences which are statement. I discuss about the sentences which are not statement. यहाँ आज का कंसेप्ट हमारा एक ही था कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं है. इतना काम आपको करना है. उसके बाद आपको लिखना है कि ये अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट को ट्रूथ वैल्यू होती है. तो ट्रूथ वैल्यू क्या है आपको बताना है कि टी है कि एफ है कि टी है. डिपेंड अपॉन योर नॉलेज. सो नॉलेज इसके लिए चाहिए. यस, बेसिक नॉलेज तो चाहिए. सो प्लीज गिव मी योर पेन. दिस इज रिक्वेस्ट, नॉट अ स्टेटमेंट. याद रखिए, रिक्वेस्ट
इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस है, एक्सक्लामेटरी है, कमांड है, सजेशन है, ऑर्डर है, इस तरह के सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते. बट जो स्टेटमेंट है वो एक तरह के असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट there is again one open sentence concept is there. ओपन सेंटेंस. यस, हमने इतने टाइप पढ़े ना, रिक्वेस्ट पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, एक्सक्लेमेटरी पढ़ा, कमांड पढ़ा, सजेशन पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा. ओपन सेंटेंस भी होता है. अब ओपन सेंटेंस क्या है? व्हाट इज ओपन सेंटेंस? व्हेन आई विल टॉक अबाउट दिस सेंटेंस x plus 5 is equals to 10. Students remember this statement, this sentence has true truth value. इसकी दो ट्रूथ वैल्यू आएंगी. कैसे? लेट्स से इफ आई विल पुट x इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 डाली, 5 प्लस 5 क्या आ रहा है भाई? 10. तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? t आ गई, बिकॉज इट इज ट्रू. बट नाउ लेट्स कंसिडर दिस अगेन, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10. दिस इज द स्टेटमेंट. नाउ लेट्स पुट वैल्यू x इक्वल्स टू 3. नाउ यू टेल मी वेदर इट इज ट्रू. 3 अगर डालोगे तो क्या होगा? इक्वल होगा. 8 इक्वल्स टू 10 होता है? नहीं. सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स. व्हेन a mathematical statement or a sentence which has two truth values, जिसकी दो truth values आएंगी, वो open sentence कहा जाता है. For example, you are tall. आप tall हो. अब आप बोलोगे tall हो क्योंकि मेरे आजू बाजू वाले सारे शॉर्ट है इसलिए मैं tall लग रहा हूँ. अगर मेरे साइड में कुछ बड़े लोग आ गए तो मैं शॉर्ट हो जाऊंगा ऑब्वियसली. सो सिचुएशन के हिसाब से, अभी यहाँ पे सिचुएशन ये थी तो ट्रू हो गया, यहाँ पे सिचुएशन ये है तो फॉल्स हो गया. इफ आई विल से यू आर वेरी इंटेलिजेंट, अगर मैं कोई किसी बच्चे को बोलूँगा यू आर वेरी टैलेंटेड, तो वो टैलेंटेड है क्या? नहीं, वो मेरे लिए टैलेंटेड है. पर्सन टू पर्सन चेंज होगा. कोई इंग्लिश का टीचर आएगा, ये डफर, इसको तो कुछ नहीं आता है. सो डिपेंड अपॉन सिचुएशन इट्स ट्रूथ वैल्यू वैरी. सो वो ओपन सेंटेंस हो गया. ओपन सेंटेंस मीन्स ओपन है, कोई इसको ट्रू बोल देगा, कोई इसको फॉल्स बोल देगा, इसका कोई प्रूफ लिखा नहीं जाएगा. बट सन राइजेस इन द ईस्ट, चेंज कर पाओगे ट्रूथ वैल्यू? नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी हैव अ प्रूफ. इधर से उग रहा है ना, पूरब से, सामने पूरब है मेरे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं. तो 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 होता है. 5 को 2 बार ऐड कर कितना आता है? 10 आता है भाई. तो तू कैसे बोल रहा है कि ये करेक्ट है? नहीं, ये फॉल्स है, बिकॉज वी हैव प्रूफ. तो प्रूफ के लिए लॉजिक लगता है. ट्रूथ वैल्यूज प्रूव करने के लिए कुछ लॉजिक चाहिए, कुछ प्रूफ्स चाहिए. तो यहाँ पे प्रूफ ही नहीं है. क्या प्रूफ है हमारे पास? हमारे पास एक्स की वैल्यू ही नहीं. कोई भी कुछ भी डाल देगा तो उसकी वैल्यू उसकी तरह से आएगी, तो वो ट्रू भी बोल सकता है, फॉल्स भी बोल सकता है. सो दिस इज कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस. आज हम यहाँ पे रुकते हैं. आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है कि कोई अगर स्टेटमेंट दिया है तो उसकी ट्रूथ वैल्यूज आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको लिखनी पड़ती है. बट अगर कोई सेंटेंसेस दिए है तो आपको पता होना चाहिए कि वेदर इट इज स्टेटमेंट और नॉट. So I will give you some homework. Just note it down. Yeah. Wait a second. Okay. Before this, we will solve the examples. होमवर्क देने से पहले ये सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है. अगर बोर्ड में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट इन लॉजिक. मैथमेटिकल लॉजिक में जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस है, इसमें से कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट है? राइट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है कि नहीं है वेरीफाई करो और उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखो अगर है तो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. 6 4 ज़ा 24. यस, दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट. सो आई विल राइट इट इज अ स्टेटमेंट and what is the truth value of this? 6 4 ज़ा, yes, 6 4 ज़ा 24. So it is a statement which is false because they have given 25. Done. So its truth value, that I will write, its truth value is f, capital F. X plus 6 equals to 9. Now you tell me, I already discussed about this. X, everybody will put different value of X. Somebody will put here 3. So I will get equals to 9. 9 plus 9 equals to 9. So there for them it is true.
but for others it is false. So this is open sentence. So I will write here, it is open sentence. Therefore, it is not a statement. ये statement ही नहीं तो true और false का कोई बात ही नहीं. Now third number, what are you doing? This is interrogative sentence, question है. So it is questions or it is interrogative sentence. आपको याद करना पड़ेगा ये. It is not statement. Remember. Now fourth one, the quadratic equation x square minus 5x equals to 6. X square minus 5x plus 6 equals to 0 has two real roots. अब रूट दो आते हैं. अब मुझे दो आते हैं कि नहीं आते चेक करना पड़ेगा, तभी तो मैं बोलूंगा. ये तो स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली दिस इज स्टेटमेंट, बट ये दो आते हैं कि नहीं आते चेक करूंगा तभी तो ट्रू है कि फॉल्स है ये समझेगा. तो इसके लिए मैथ्स की जरूरत होगी. अब मैंने बोला था कि कोई जरूरत नहीं, बट होती है बेटा, थोड़ी थोड़ी जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे लगेगा. बेसिक नॉलेज तो चाहिए ऑब्वियसली. बोलिए क्या होगा, स्प्लिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6. इसको इन शॉर्ट आप कैसे लिखोगे डायरेक्टली, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 आ रहा है, x इक्वल्स टू 2 आ रहा है, दो रियल वैल्यूज मिल रही है रूट्स. सो दिस इज इट्स अ स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट है ऑब्वियसली, मैंने पहले ही बोल दिया, बट अभी ये कौन सा स्टेटमेंट है, विच इज ट्रू. खत्म. सो इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t. थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ रही है तो आपका उतना डेटा जाता है, रिमेंबर, और उतना स्क्रीन टाइम बढ़ता है. नाउ दिस 4 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू. yes 5 questions, 1 2 3 4 5. These 5 questions are homework for you. Note down clearly and do it. So here we conclude today's period. See, I am also human being. मुझसे भी कुछ गलतियाँ होती है बोलते समय, टंग ट्विस्ट होता है. सो अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट. आई एम रेडी टू टीच यू एवरी बेसिक थिंग. सो बी विथ मी, बी कनेक्टेड. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. थैंक यू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे.